हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द ARY's ऐप। Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 and we're almost coming to the end of the initial stages before we go into the knockout stages where all the action is waiting. 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं और एक टीम जो है वो उसने क्वालिफाई करना है, which should be New Zealand. But we'll find out at the end of the day today. आज 2 बड़े मुकाबले हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं अपने 4 दोस्तों, अपने 4 elite panelists को इस डिस्कशन के अंदर शामिल करता हूं. I've got 4 former captains of Pakistan, 4 outstanding cricketing minds that join me here in the pavilion. First up, I've got the young dynamic, one of the great fielders, great runner between the wickets, great player of spin bowling and captain of Pakistan, former Shoaib Malik. Good morning and assalamu alaikum, Shoaib. Good morning, assalamu alaikum, everyone. With that, I have Mr. Dependable, one of the most successful test captains in Pakistan's test cricket history. I've got Misbah. Good morning, assalamu alaikum, Misbah. Good morning, walaikum assalam, assalamu alaikum, everyone. Also up next, हम लोग उनको प्यार से कहते हैं the silver fox of the pavilion, great wicket keeper, great runner between the wickets. We used to also call him the man of crisis. We've got Moin Khan. Good morning, assalamu alaikum, Moin. जी, good morning, वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम everyone. और दोस्तों, आप जहाँ पे भी जाएं, मगरिब हो या मशरिक हो, जनूब हो या शुमाल हो, शायर एक ही है और वो पेविलियन का शायर है। शायर पेविलियन, रैप स्टार, अदाकार, फनकार और मुकम्मल कलाकार, आपके और हमारे सुल्तान ऑफ स्विंग, द रॉयल्टी ऑफ क्रिकेट, द किंग ऑफ ऑल राउंडर्स, वसीम अकरम। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। Good morning, अस्सलाम वालेकुम। आज पाइन की बरूद खा के आए and not तेज। फ्रेश नींद हुई है तो जरा बिल्कुल फ्रेश चल रहा हूँ, बिल्कुल इस तरह का माहौल हुआ है इस वक्त। Good boy। कल जो था मैच दोस्तों, वो मैच था साउथ अफ्रीका का, अफगानिस्तान की कैंपेन खत्म हुई इस वर्ल्ड कप के अंदर। दे प्लेड रियली वेल। लेट्स टेक अ लुक एट द मैच समरी। दिस इज हाउ इट वेंट डाउन। ये था कल का मैच। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की कल, टॉस जीतकर 2000 कह रहा हूँ 244 रन की। 244 for Afghanistan in 50 overs. Azmatullah, they're breaking a great 97 for 107 balls. Noor and Rahmat and Gurbaz also contributing. Koitzi was really quick, 4 for 44. Maharaj also picking up 2 wickets there. Nigiri also picking up 2 wickets there. In response, in 47.3 overs, South Africa completed the target. ये चेस करके उन्होंने जीता है कल का मैच। 247 for the loss of 5 wickets. वेंडर डूसन की बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी, जिस इनिंग्स ने इस मेक श्योर किया कि साउथ अफ्रीका फिनिश लाइन को क्रॉस कर सके। नबी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें हासिल की 35 रन पे। राशिद 2 for 37 and Najib 1 for 51, and this is how it all went down. South Africa winning this one by 5 wickets. और इसके साथ ही आइए जरा नजर डाल लेते हैं एक दफा फिर पॉइंट्स टेबल के ऊपर। This is how the points table is looking on your screen right now. You have the points table. Or here's the points table now. We just need one more team to qualify for the semi-finals and that'll close the table. But right now, good to see Pakistan 5वें नंबर पे मौजूद है। क्या आज पाकिस्तान कोई मौजज़ा कर सकता है और सेमीफाइनल के लिए एक ट्राई कर सकता है? We'll find out. We'll talk to our experts about that. But you've got there now Afghanistan sitting at number 6, England at 7, Bangladesh at 8, Sri Lanka at 9, and Netherlands at 10. Now, Bangladesh का आज मुकाबला है। Bangladesh want to make sure that they secure their position for the Champions Trophy, and that's how situation is right now. Let me start off. Great campaign. हम कल बात कर रहे थे इसकी भी वसीम, अफगानिस्तान की कैंपेन के बारे में हमने कहा कि बड़ा ज़बरदस्त था, बट इंपॉर्टेंटली कल साउथ अफ्रीका ने चेस करके अपना मैच जीता। बिल्कुल, थोड़े से बटरफ्लाइज थे, जो थोड़ा सा प्रेशर था उनको। 2-1 मैच जो हारे हैं इस वर्ल्ड कप में चेजिंग में, इंडिया के खिलाफ 83 पे ऑल आउट हो गए थे, सो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। और सुबह हमने बात भी की थी कल इनफैक्ट मैच से पहले कि आई थिंक दे शुड चेज एंड ट्राई टू चेज एंड दे डिड, एंड आई थिंक दे उससे एक पूरी टीम को, बैटिंग जो इनकी टीम है, जो टॉप के 6 बैटर हैं, दे प्रॉब्ली फेल्ट बिट मोर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट। दैट्स अगर बड़े मैच में, नॉकआउट मैच, सेमीफाइनल में चेज भी करना पड़े तो वी शुड बी ओके। क्लासन, मिसबा, व्हाई डू यू थिंक क्लासन, चूंकि ये 1-2 मैचेस शुरू बड़ा ज़बरदस्त हुआ उनका वर्ल्ड कप, फिर अब जरा थोड़ी सी यूँ लग रहा है कि जैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या व्हाट्स गोइंग ऑन देयर? आई थिंक जो मुझे लग रहा है, जैसे शोएब ने बार ये बात की है कि जब उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है और फिर वो आके वो खेलते हैं अपनी T20 या T10 क्रिकेट, जिन मैचेस में वो वाली सिचुएशन उनको नहीं मिली, वहाँ पे रन्स नहीं हुए, तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न साउथ अफ्रीका के लिए भी होगा। बट आई थिंक कि चाहे सेकंड खेल रहे हो या पहले, आपको कहीं ना कहीं वही अप्रोच लानी पड़ेगी कि ठीक है, प्लेटफॉर्म सेट है, मैं जिस तरीके से खेलता हूँ उसी तरीके से मुझे खेलना चाहिए। ये एक थोड़ा सा वरिंग साइन ज़रूर है साउथ अफ्रीका के लिए। जीते हैं बट स्टिल थोड़ा डॉजी लगे हैं, बीच में प्रेशर आया है।
होपफुली कि वो सेमीफाइनल में फिर भी नहीं चाहेंगे कि वो चेस करें. They'd like to put up a target. Now, जो अभी तक 3 semi-finals समझ India undefeated, South Africa there now, and Australia. Now New Zealand should be probably the 4th semi-finalist. जो 3 qualify कर चुके हैं, Moin and Shoaib, आप लोगों की नज़र में, which 3 out of the 3, which one is the strongest one right now? I mean, obviously India undefeated, right? But where are the gaps? Where are the gaps in these teams? करें आप करें स्टार्ट. देखिए इंडिया में तो वो गैप नहीं नज़र आता है. उनका हार्दिक पांड्या जो है वो इंजर्ड हुए थे तो वो थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा था, बट वो सूर्या कुमार यादव ने वो गैप को कवर कर दिया. और उन्होंने क्या किया, एक मेन बॉलर ले आए मोहम्मद शमी की सूरत में, और वो 5-5 उन्होंने विकेटें लेनी शुरू कर दी हैं. अगर हम ओवरऑल देखें तो मैच किसी भी सिचुएशन में जाए थ्रू आउट 100 ओवर्स, सो इंडिया दे आर कवर्ड फ्रॉम ऑल द एस्पेक्ट्स. ऑस्ट्रेलिया ने लेट स्टार्ट किया इस वर्ल्ड कप में, जो विनिंग स्ट्रीक उनकी शुरू हुई वो लेट हुई. शुरू के मैचेस वो हारे, उसके बाद उन्होंने जीतना शुरू किया, लेकिन उनके भी जो प्लेयर्स जो थे वो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन वो वापस उन्होंने फॉर्म गेन कर लिया है. बॉलिंग अटैक उनका वो बहुत प्रेडिक्टेबल है, वही तीन पेसर्स हैं, फिर एडम जैम्पा है, 5वां बॉलर जो है उनका स्टोनीज है या मिच मार्श है या मैक्सवेल करता है, कैमरून ग्रीन भी बीच में खेले, तो वो भी उनके भी काफ़ी सारे एरियाज़ जो है वो कवर्ड हैं. साउथ अफ्रीका का ये एक प्रॉब्लम है कि द डे दे लूज़ द टॉस दे आर स्ट्रगलिंग, स्पेशली अगर उनके अगेंस्ट 300 के आसपास रन्स बन जाए तो वो स्ट्रगल करते हैं. अगर उसको भी उन्होंने इस चीज़ को कवर करना है, नो डाउट देव चेस्ड अगेंस्ट बांग्लादेश, कल अफगानिस्तान उन्होंने चेस किया, बट क्विंटन डी कॉक वो जब भी चेजिंग में गए हैं और वो अगर ऊपर से जल्दी आउट हुए हैं तो उन्होंने स्ट्रगल किया. पूरा बैटिंग ऑर्डर उनका जो है वो स्ट्रगल करता है. उनमें ये है. न्यूजीलैंड बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, अगर वो क्वालिफाई करते हैं इन द लास्ट 4 जो कि मोरलेस कर ही चुके हुए हैं, तो उसमें उनका बैटिंग जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. हाँ, मैट हेनरी पे वो बहुत रिलाई कर रहे थे, अर्ली उनको विकेट्स देते थे, लेकिन वो भी इंजर्ड हो चुके हुए हैं. तो वो एक टिम साउदी, नो डाउट उन्होंने बहुत मैचेस जितवाए हैं, बट ही इज़ नॉट एज गुड एज मैट हेनरी जो थे. तो उनका वो एक जो है एरिया है, बट ओवरऑल ऑल 4 टीम्स India is the strongest. Yeah, it is clearly India looks the strongest. For the remaining teams, Australia, South Africa and New Zealand, अब ये आगे जब जाएंगे, अब तो नॉकआउट स्टेजेस हैं, so there is hardly any room for errors. How do you hold on to your nerves when you go on to this stage now? बट देखिए, प्रिपेयर तो सारी टीमें जो प्रोग्रेस किए हैं यहाँ तक टॉप 4 के अंदर आके, यू नो, दे वर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस थिंग्स, यू नो. तो प्रेशर तो आना था इवेंचुअली, यू नो, जब बड़ा मैच आप खेलते हैं सेमी, तो नर्व्स को होल्ड आप इसी तरह करते हैं कि उस मोमेंट को एंजॉय करें, आपके जिसके लिए आपने इतनी प्रिपरेशन की है, जो आपका अल्टीमेट गोल था. एक स्टेप उसके दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप के सेमीफाइनल में उनके लिए होगा. आई थिंक उस मोमेंट को अगर आप एंजॉय नहीं करेंगे, मुश्किल होता है कि प्रेशर एक ओवर में एक विकेट गिरने से या एक अच्छे प्लेयर की एक अच्छी इनिंग से आ सकता है दूसरी टीम के ऊपर. तो आई थिंक उसको कोप अप करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस मोमेंट को एंजॉय करना, एंजॉय दैट कि आप जाएं, जस्ट प्ले योर गेम, यू नो, ऑन योर पोटेंशियल. अगर ज़रा से भी कोशिश ये हुई कि थोड़ा सा प्रेशर लिया आपने, तो नेक्स्ट जो फिर इफ़ेक्ट करता है पूरी टीम के ऊपर, तो वो पूरा कहना चाहिए कि मैच भी चेंज हो सकता है. तो आई थिंक यहाँ पे एन्जॉयमेंट का जो फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट होगा. जिसके लिए प्रिपेयर किया था वो मौका आ गया. नाउ दे हैव टू डिलीवर. All right, they have to deliver. And with that, we're going to take a break here in the Pavilion. But when we come back, we're closer to the action of the day. Stay with us. Hello and welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and Sports in the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. With me in the Pavilion, I have Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan and Wasim Akram. And we have a double header today. 2 आज के मैचेस हैं आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं. Let's take a look. The first game is Australia versus Bangladesh. ये 10 बजे अब से कुछ देर बाद शुरू होगी. बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश करेंगे. पुणे से ये मैच आएगा. So this is Australia versus Bangladesh. Australia have already qualified for the semi-final.
and Bangladesh is trying to secure its position in the Champions Trophy. And then the second one is England versus Pakistan. ये 1:30 बजे शुरू होगा मैच कोलकाता से, बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर आएंगे, इसके बारे में अब बात करते हैं. So these are the two games that are coming out your way today here on A Sports and Sports and the Airwise app. England and Pakistan, interesting World Cup scenario Wasim. 10 दफ़ा ये दोनों आमने सामने रहे वर्ल्ड कप के अंदर. 5 दफ़ा पाकिस्तान जीता है और 4 दफ़ा इंग्लैंड जीता है और 1 दफ़ा कोई रिजल्ट नहीं था. डू यू थिंक बोथ टीम्स वेयर दे आर इस वर्ल्ड कप में जो हालात रहे दोनों टीमों के, डू यू थिंक दिस इज ए इवन स्टीवन काइंड ऑफ अ कंपटीशन, दोनों बराबर की टक्कर की टीमें? They both playing, England, obviously, they probably have qualified for the Champions Trophy, but they'll want to go out on a high note. As a team, as a captain, as a player, you don't want to lose the last game of the World Cup, and same goes for Pakistan. वो भी चाहेंगे, वो कोशिश है, there is outside chance. Pakistan has to win by approximately 287 runs or chase in about 4 overs. मुश्किल, impossible तो है, but they can only thing Pakistan can do from here, show your skills, go out, have fun. उनकी फील्डिंग से पता लग जाएगा पाकिस्तान की कि किस मूड से आज ये खेलेंगे, अगर पहले फील्ड आती है हमारी. इनको करना चाहिए वसीम भाई, अगर तो थोड़ा सा भी ये चांस लेना चाहते हैं तो उसमें मेरे ख्याल में जो अगर अचीव करना है 287 वाला या in about 4 overs or chased whatever they scored in 4 overs. I don't know. Unless Look, it's mathematically there, but I think we're all responsible enough to understand that cricket, the way the game is played in these days and age, this is just a miraculous thing. I mean, it's something that is just... It's got to be more than miraculous. It has to be more than miraculous. So, I mean, nothing is impossible. वो कहते हैं ना, nothing is impossible, but this is improbable. I think that's what we'll have to say. This is improbable. That is the right way to go about it. What's at stake here for England and Pakistan both, Misbah? ज़ाहिर है ओवरऑल वर्ल्ड कप में अगर देखा जाए तो दोनों की परफॉर्मेंसेस वैसी नहीं है. पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान कुछ थोड़ा इंग्लैंड से बेहतर पोजीशन में है. स्टिल एक होप, आउटसाइड चांस जो हम कह रहे हैं वो है. बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ टीम्स के आखिरी मैच अच्छा खेल के और जीत के जाए. तो इंग्लैंड भी पूरी कोशिश करेगी और पाकिस्तान के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट जाते हुए एक अच्छी, जिसको कहते हैं अच्छी याद लेके जाएं वर्ल्ड कप की. ओवरऑल तो परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं थी. इंग्लैंड उन्होंने पिछले मैच में भी शो किया है और वो कोशिश करेंगे कि वो मैच अच्छा खेलें, डोमिनेट करें और जीते. सो लेट्स सी हाउ दे जस्ट कम अप. बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि कौन किस बॉडी लैंग्वेज के साथ आता है, क्या सोच के आते हैं और किस तरीके से आगे खेलते हैं. मोइन, पिछले साल नवंबर में यही दोनों टीमें जो थीं ये वर्ल्ड कप T20 को ऑस्ट्रेलिया में फाइनल खेल रही थीं और 1 साल बाद दोनों की दोनों टीमें जो हैं ODI वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर हैं. बल्कि एक टीम को तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम हुई थी कि वो शायद चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भी ना क्वालिफाई करें. इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ. कैसे वक्त बदलता है? देखिए, एक तो दोनों डिफरेंट फॉर्मेट थे. T20 में पाकिस्तान अभी भी मैं समझता हूँ कि बेटर टीम है शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर. इवन इंग्लैंड भी नो डाउट है T20 के अंदर बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, फाइनल जीता था पाकिस्तान के खिलाफ. लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट सिनेरियो है. दोनों टीमों के पास जो अभी मिसबा ने बात की वो एक स्टेक ये है कि आप एंड नोट जो है वो अच्छा हम करें. आई थिंक बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर करेगी. यहाँ पे आगे देखना होगा किस माइंडसेट के साथ आती है पाकिस्तान टीम, स्पेशली बिकॉज बीइंग अ पाकिस्तानी फैन ऑफ फॉलोइंग ऑफ द गेम. हर जो पाकिस्तान को फॉलो करने वाला जो इस वक्त फ़ैन है वो ये चाहता है कि कम से कम पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट खेले, डैशिंग क्रिकेट खेले. कम से कम वो जो हमारा एक हमेशा से फ्लेयर है कि हम बड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, जो कि इस वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आई कहीं भी सिवाय एक मैच के जहाँ पे मैं समझता हूँ फखर ने जिस तरह की बैटिंग की वो फ्लेयर मिसिंग है. उस फ्लेयर को ज़रूर दिखाना पड़ेगा यहाँ पे जस्ट टू गेन दी फैन फॉलोइंग अगेन कि एटलीस्ट आप एंड नोट आपका अच्छा रहे इस टूर्नामेंट के अंदर. इंग्लैंड के लिए स्टेक मेरा नहीं ख्याल कि दिस इज़ another ODI for them. इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड मुझे लगता है कि दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम लोगों ने किस तरफ जाना है. लेकिन पाकिस्तान का जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैच है आज वाला. इस मैच के बाद पता चलेगा कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस डायरेक्शन में जाएगी. तो अगर जीते, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. और ये ऐसा होगा क्योंकि हम लोगों ने इंटरव्यूज़ देखे इंग्लैंड के प्लेयर्स के. दे नो what they want after the World Cup. लेकिन ours is not confirmed.
ours is a lot dependent on today's game. कोई I इंग्लैंड know- का डाउनफॉल ये भी तो नहीं हो सकता कि दे rely too much on data. For instance, game against South Africa, they won the toss and Mumbai ki heat 37 degrees feels like 41, 42 and they bowled there in the afternoon. And they were looking at the data कि अच्छा यहाँ पर चेज करके ये वो और वहाँ हो सकता है वसीम भाई प्लीज नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कभी कभार टीम जो इतनी ज़्यादा फॉर्म में होती है, सारे ही लड़के बहुत ज़्यादा फॉर्म में थे इस वर्ल्ड कप से पहले, यू नो, तो एवरीबडी स्टार्ट मे बी डिपेंडिंग ऑन ईच एंड एवरीबडी के यार मैं अच्छा, वो एक दूसरे पे ये नहीं कर लेगा, ये नहीं तो वो कर लेगा. Could be, but these guys hardly played any ODIs last year. अभी numbers आपको बताए थे मैंने. उसमें फॉर्मेशन जो है ना इंग्लैंड का, वो अगर हम देखें तो वो प्रेशर बैटिंग पे डालते हैं क्योंकि उनके 10-11 तक, जैसे आप हमेशा कहते हैं अदील रशीद के 10 100 हैं फर्स्ट क्लास में तो 10वें नंबर पे आता है तो इस वजह से ना वो ज़्यादा प्रेशर बैटिंग पे डालते हैं. वो उस फॉर्मेशन के साथ आए थे. बॉलिंग एज आई ऑलवेज से कि वो उनका थोड़ा सा जो है फ्रॉम डे वन यू हैव सेड दिस. Yes, जब हमने पहला प्री शो भी किया था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, जब इंग्लैंड की ये डिजास्टर नहीं हुई थी और जिस वक्त हम लोग सब कह रहे थे कि वन ऑफ द सेमीफाइनलिस्ट विल डेफिनेटली बी इंग्लैंड, आपने उसी वक्त कह दिया था कि वो सारा बैटिंग पे डाल देते हैं कि 400 मार लो हम पूरे कर लेंगे किसी और उनके बैटर्स नहीं चले. उनको हिट जो किया ना वो उनके कन्वेंशनल क्रिकेटर्स ने किया है ज्यादा. एक डेविड मलान और एक जो रूट, इनके रिवॉल्व वो बाकी जो है पावर हिटर्स, वो जो है पावर हिटर्स वो चलते थे, लेकिन वो दोनों कंसिस्टेंट नहीं रन्स बना सके. जो रूट ने सिर्फ पहले 1-2 मैचेस में रन बनाए, डेविड मिलान ने भी ऑन एंड ऑफ रन्स बनाए. तो वो जो पावर हिटर्स हैं वही साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम है. जब उनको बेस मिलता है वो फिर पड़ जाते हैं सारे नीचे वाले भी. अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि आज के मैच के बाद पाकिस्तान का जो जाविया है कि किस तरफ जाना है उसके ऊपर बहुत बात होगी और हम भी करेंगे आज शाम को जब पोस्ट मैच में हम वापस आएंगे करने के लिए. बट वसीम, अभी आपने एक बात की कि इंग्लैंड ने शायद इतने ओडीआईज नहीं खेले, यू नो, मे बी दिस इज वन ऑफ द मेन प्लेयर्स नहीं खेले, व्हिच टेक्स मी टू अनदर क्वेश्चन मिस्बा, एंड आई विल ब्रिंग दिस टू यू. ये पाकिस्तान का आखिरी ओडीआई है इस साल का. इसके बाद फिर अगला जो ओडीआई सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है नवंबर में. अगले साल 3 ओडीआईज जो है वो स्केड्यूल्ड है. इज इन बिटवीन कोई ओडीआईज नहीं है पाकिस्तान के बीच में. मैं एक चीज़ पूछना था वसीम, यूड बी एबल टू, जब आप लोग जाते थे कि जी डाउन अंडर के टूर पे गई हुई है पाकिस्तान टीम, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड गई हुई है, आप लोग भी गए हुए हैं, तो जी इतने टेस्ट मैच होंगे फिर इतने ओडीआईज होंगे यार. वो होता था ना कि हमेशा सीरीज इकट्ठे एक ही दफा चले गए सारे, तो सब 5 वनडे हो गए, 3 टेस्ट मैचेस हो गए. आप जाएंगे, आप कमेंटरी करेंगे जब पाकिस्तान टीम जो है वो दिसंबर में 12 दिसंबर को वहां पर टेस्ट मैचेस खेलने जा रही है, तो इस वक्त क्यों नहीं हो रहे ओडीआईज इसके? देखिए, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ ना कि आपकी टीम मैनेजमेंट को कुछ पता नहीं होगा, आपके प्लेयर्स को कुछ पता नहीं होगा, कौन ये डिसाइड कर रहा है. आप कमर्शियल एस्पेक्ट देखते हैं, आप देखते हैं कि कहाँ से हमें फ़ायदा हो रहा है. T20 हैं, T20 वर्ल्ड कप है तो हमने खेलना ही T20 है. भाई आपकी प्लेयर डेवलपमेंट कहाँ से होगी? आप टेस्ट मैच 8 मैक्सिमम खेलते हैं साल में, उससे ज़्यादा नहीं खेलते. दूसरी टीमें कोई 15 खेलती है, कोई 16 खेलती है, कोई 14 खेलती है मिनिमम. डेवलपमेंट तो वहाँ होनी है ना. इसी तरह इंडिया रेगुलर बेसिस पे ओडीआई, इट्स अ वर्ल्ड कप है या नहीं है, वो रेगुलर खेलते हैं क्योंकि उनको पता है प्लेयर हमने डेवलप करने हैं. लॉन्गर वर्जन हम नहीं खेलेंगे तो कहाँ से प्लेयर आएंगे? हम किसने डिसाइड किया ये कि हमारा पूरे साल में वनडे ही नहीं है? क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं फोर्स करते हैं? पड़ेगा एक्चुअली. बात वही है ना कि आपकी ये प्लानिंग जो है वो बाकायदा इसको देख के करना चाहिए. भाई हमने क्रिकेट की जो प्लानिंग करनी है, प्लेयर डेवलपमेंट टीम बनानी है, फिर आप कहते हैं कि 6 महीने पहले हम अब वनडे की टीम बना लें. जब वर्ल्ड कप आने वाला तो उसी साल हम मैचेस रख के आखिरी साल में हम खेल के फिर हम क्या कहते हैं आखिरी साल में आपके प्लेयर कितने खेलेंगे? भाई 18 या 20 आपने या 30 वनडे खेलना है तो ज़्यादा कितने वनडे खेल लेगा एक प्लेयर? रिप्लेसमेंट्स कहाँ से आएंगी? तब भी आएंगी जब आप 4 साल लगातार एक सर्टन नंबर ऑफ ओडीआई, सर्टन नंबर ऑफ T20, सर्टन नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस खेलेंगे तो डिफरेंट प्लेयर्स को मौका बराबर दे के 4 साल बाद वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट होगी. तो यही तो चीज़ें जो हम प्लान नहीं करते और फिर सारा मलबा आता किस पे? प्लेयर्स पे. ये एग्जांपल आपके सामने है. इंडिया की टीम के मैचेस आप निकाल लें, उनके प्लेयर्स के ओडीआई क्रिकेट के मैचेस सबसे ज़्यादा हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जितनी टीम्स हैं. एंड देयर ओडीआई रिजल्ट्स, द रिजल्ट्स आर वेरी देयर. पर देखिए इसमें एक मैं और ऐड करूँगा कि फिर प्लेयर्स पे इल्ज़ाम आता है कि दे डोंट वांट टू जस्ट रेस्ट. भाई 18 मैच अगर होंगे, एक फर्ज करें इमाम है या कोई और प्लेयर, वो खेलता ही एक फॉर्मेट है या 2, फिर उसको वो नंबर ऑफ मैचेस इतने कम है, उसमें भी हम कहेंगे वो रेस्ट कर लें. तो वो यही वजह है कि फिर हम प्लेयर्स को उस तरह डेवलप नहीं कर सकते. All right, with that we're going to take a break here at the Pavilion, but when we come back we're closer to the action. Stay with us please.
Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स इन द एयर बाय ज़ैप ऐप और कंटिन्यूड कवरेज ऑफ द आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023। आज दो मुकाबले हैं। पहला मुकाबला आपकी खिदमत में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश, जो कि 10 बजे शुरू होगा बराह रास्त, और दूसरा मैच पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड। दैट्स द सेकंड मैच जिसके बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे। और ब्रेक में जाने से पहले मिसबा आप हमें बात कर रहे थे कि प्लानिंग का बहुत बड़ा एक फुकदान है, और आपने बताया कि इंडिया के मैचेस अगर आप कंपेयर करें तो इंडिया की परफॉर्मेंस जो है वो वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ रही है। किसी ने ट्वीट की थी, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट थी अबाउट, उन्होंने शुभमन गिल का मुआवजाना किया था। हमारा यंग प्लेयर बैट्समैन कौन है, आप नाम आपको याद होगा? नहीं अभी वो लेफ्टी अंडर 19 का समी असलम नहीं समी असलम से नहीं किया था, उसने किया था स्कोर कर रहा है, यू सेड अंडर 19 के वर्ल्ड कप में, जिस 2018 के जिस अंडर 19 के वर्ल्ड कप में शुभमन गिल ने खेला था इंडिया की तरफ से, उसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी एक प्लेयर ने भी खेला था जो हमारा सबसे बेहतरीन बैट्समैन थे, वो समी असलम नहीं थे। समी असलम पुराने इसको नाम दिखाया मैंने, फॉरगॉट हिज नेम। तो उन्होंने पूरा उसमें, आई थिंक हारून नाम है, जिन्होंने ट्वीट की थी कल रात, और उसमें पूरा उन्होंने बताया कि दोनों ने वर्ल्ड कप खेला, वो 2018-19 वाला जो भी था, दोनों प्लेयर ने। ये पाकिस्तान से अली ज़रियाब ठीक है, अच्छा सीजन उसका जा रहा है। उसने मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं, ये जो कि पूरा आपने ये अब बता दें। शुभमन गिल वाज इंडियाज बेस्ट बैट्समैन इन द 2018 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान के थे अली ज़रियाब। बोथ मेड इट टू द टीम ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, टीम ऑफ द टूर्नामेंट जो सारी टूर्नामेंट पूरी एक बनाते, दोनों उसमें थे। उस वक्त से लेकर अब तक गिल हैज प्लेड 96 लिस्ट ए मैचेस, ज़रियाब हैज प्लेड 4 लिस्ट ए मैचेस। Gill has played 123 T20s, Zaryab has played 0 T20s. तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि इंडिया ने गिल के ऊपर जो है इतना उन्होंने उसको उसमें इन्वेस्ट किया, उसको ए टीम में भेजा इंडिया की टूवर्ड्स टू ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड वेस्ट इंडीज़। मीनवाइल पीसीबी ने क्या किया अली ज़रियाब के साथ, उसके बारे में मिसबा आप बता रहे थे कि उनका सीजन बड़ा अच्छा जा रहा है। किसके लिए खेल रहे हैं? लाहौर से खेल रहे हैं और बड़े ज़बरदस्त रन किए हैं और लंबे 100 किए हैं, मेरे ख्याल में 200 भी किया है। ऐसे ही है, ऐसे ही आप उनको जब तक डेवलप नहीं करेंगे, इन प्लेयर्स को जो परफॉर्म करके आते हैं, और उनको उस तरीके से, जो हमारा मसला यही है कि हमारे जो अंडर 19 या निचले लेवल से जो भी प्लेयर खेल के आता है, परफॉर्म करके आता है, फिर उसको इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट बनाने के लिए वो जो प्रोसेस है बीच में डोमेस्टिक क्रिकेट का, वो उस तरीके से नहीं होता। नंबर ऑफ़ मैचेस, इवन मैं हमेशा बात करता हूँ वनडे क्रिकेट की, हम बात करते हैं कैसे डेवलप होंगे। एक टूर्नामेंट खेलते हैं आप, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मैच साल में। आपकी जो क्लब क्रिकेट भी होती है या जो लीग्स की क्रिकेट, सारी T20 क्रिकेट है ना। किधर आप 4 डे क्रिकेट में भी ठीक है, आपका एक टूर्नामेंट हो गया, आपने खेल लिया। वनडे के लिए कहाँ प्लेयर किस तरीके से बनेगा, वो हमें नज़र आ रहा है। हमें जब तक हम वो फॉर्मेट ओवर एंड ओवर नहीं खेलेंगे, हम अपने स्किल्स को, गेम अवेयरनेस को, सारी चीज़ों को किस पीरियड में कैसे खेलना है, हम उस तरीके से डेवलप नहीं कर सकते। हमारे दौर में भी या पीछे भी ऐसे होता था, लेकिन उस टाइम क्लब क्रिकेट 40 ओवर्स 45 ओवर्स होती थी। आप बहुत ज़्यादा वो क्रिकेट खेलते थे। T20 क्रिकेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। T20 क्रिकेट कम होती थी और लंबी क्रिकेट आपको ज़्यादा मिलती थी। Yeah, I know it completely changed the whole paradigm of things as time has gone by. What are the likely changes? क्या आज पाकिस्तान कोई तब्दीली करेगा? शोएब, मोइन, आप दोनों के पर्सपेक्टिव से do you think कि उससे पहले the first question is, can Pakistan or should Pakistan play with 4 fast bowlers like the last game, or stick with 3 or put extra spinner? लेकिन आई थिंक डिपेंड करता है कि किस तरह की पिच मिलने जा रही है। तो पिच पे हल्का हल्का घास है। घास मेरा नहीं ख्याल है कि 3 पेसर इनफ है वसीम भाई, या टेस्ट करना चाहिए। शादाब को दोबारा एक दफ़ा खिला के चेक करें ज़रा, if he's fit and he's been practicing, so I guess उनको खिलाना चाहिए। और मुझे लगता है कि स्पिनर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि वो मिस्ट्री स्पिनर हैं, उनका गुगली 2 टाइप का गुगली करते हैं। इवन दो ही इज बीन स्ट्रगलिंग, 4 फास्ट बॉलर के साथ ओवर रेट की भी प्रॉब्लम होगी, और लास्ट टाइम भी हुई है। लास्ट ठीक ठाक प्रॉब्लम हुई है जी, ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम बहुत बड़ी बन गई थी, फील्डर्स अंदर लाने पड़ गए लास्ट के ओवर्स में। तो आई गेस शादाब को मेरे ख्याल में आज खिलाना चाहिए, ये चेंज ज़रूर करनी चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी पाकिस्तान के लिए, वो क्लियर थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। इन बिटवीन अगर आप हुए ना कि बीच में कोई बंदे जा रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं, कोई सोच रहे हैं कि हमने 400 की तरफ जाना है, कोई सोच रहे हैं कि सिर्फ मैच को हमने देखना है। नहीं, फिर आप अगर ऐसा करना है तो आप
पूरा उसको ओवर बाय ओवर 10 ओवर 15 ओवर कुछ ना कुछ आप डिज़ाइन ज़रूर करें ताकि टीम को पता हो कि हम क्या करने जा रहे हैं। अंधे माना जाए। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि ऐसे सिनेरियोज में आते हैं, आप डबल माइंडेड जाते हैं और कुछ लोग वो 400 की तरफ जाते हुए उस तरह खेलते हुए आउट होते हैं और सडनली यू आर नो वेयर, ना तो उस पोजीशन में होता है ना फिर दूसरी पोजीशन में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ऐसे मैचेस में। इंटरेस्टिंग, यू राइट कि क्लैरिटी होनी चाहिए, और क्लैरिटी के ऊपर बड़े सारे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे जो है वो सवालात रहे हैं वसीम। वर्ल्ड कप पे जाने से पहले बाबर आजम की जो ट्रेडिशनल एक सेंड ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है यहाँ पर पीसीबी करवाता है, उसमें उन्होंने एक सवाल पे बोला था हम ग्राउंड में जवाब देंगे इस बात का, हम ग्राउंड में बताएंगे, हम ग्राउंड में आपको करके दिखाएंगे। कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया आज के मैच से पहले, जो ग्राउंड के अंदर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें कहा कि जी वो मशवरा लोग दे देते हैं टेलीविजन के ऊपर बैठ के, टीवी पे देना बड़ा आसान है, अगर मशवरा देना ही है तो नंबर तो सबके पास है ही है मेरा, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट भी मशवरा दे सकते हैं। What's going on? It seems like Babar is more focused on worrying about his captaincy and the criticism on his captaincy rather than, saying that, look, we haven't performed well and I'm going to go out there and we're going to go as a unit and we're going to execute a great game of cricket. It's a very simple math. If you do well, if you perform, everything goes fine, and if you don't, you have to answerable to people and to the press, social media. And don't worry about what people say. You got to be immune to this. It's tough to be immune, especially in social media. हमारे टाइम पे अखबार था, वो नहीं पढ़ो ठीक है, but अब तो you can't get away from it. मशवरा दिया तो था, क्या मिसबा भाई ने भी दिया था, हफीज ने भी दिया था, जब टीम अनाउंस हो रही थी मशवरा तो दिया था। क्या मशवरा दिया था? कौन सा मशवरा? ओके मिसबा, ऑन अ सीरियस नोट, कौन सा मशवरा आप, अगर नाउ दैट यू लुक इनटू हाइंडसाइट ऑफ पाकिस्तान एंटायर वर्ल्ड कप कैंपेन, आपको लगता है कि कौन सी वो एक चीज थी जो आप लोगों ने बोली जो बाबर एंड सेलेक्टर्स को मतलब उनसे मिस हो गई वो ट्रिक? वन लिटिल पर्टिकुलर एग्जांपल। स्पिन बॉलिंग सबसे बड़ा इशू था कि स्पिन बॉलिंग पे, कि स्पिन बॉलिंग आपकी आउट ऑफ फॉर्म है, आप कुछ ना कुछ उसका हल करें। आपने अभी एकदम नहीं, पिछले 1-1.5 साल जी बिल्कुल, आप एशिया कप में भी शादाब की फॉर्म जैसी थी, उसके बाद नवाज़ की भी जैसी फॉर्म थी, तो कुछ ना कुछ आप अगर जा रहे हैं तो उस वक्त आपके हाथ में था, आप उस वक्त एक्स्ट्रा अगर स्पिनर है तो वो रख लें ना। बैटिंग में तो आपका मिडिल ऑर्डर का एक्स्ट्रा बैट्समैन तभी खेलेगा जब इन बैट्समैनों में से जो आपके साथ आपके पक्के बैट्समैनों में किसी को कुछ होगा तो फिर ही आप उसको करेंगे। तो ये फिर बॉलिंग का था ऑब्वियसली कि आउट ऑफ फॉर्म है, फास्ट बॉलिंग भी, उसके बारे में भी देखना है हमने। अगर इंजर्ड हो गया नसीम शाह तो राइट सॉर्ट ऑफ रिप्लेसमेंट क्या है उसकी, उस पर हमें सोचना चाहिए। वो चीज़ थी। इन दोनों, मुझे स्पिन बॉलिंग में स्पेशली मैं कहता हूँ कि हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। ये वो वाला, ये आपने एडवाइस उस वक्त दी थी जब ये क्रिकेट कमेटी जो टेक्निकल कमेटी है उसको महीना पहले कोई था इस तरह, जब जाने से पहले का था। बिल्कुल दिस वाज ऑल ऑफिशियल, यानी कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हो रही थी। ये कोई प्राइवेट में खुसर पुसर नहीं हो रही थी कि ये कर ले वो कर ले। दिस वाज ऑल ऑफिशियली गिवन। टीम मैनेजमेंट का ये था कि हम साल या उससे भी ज़्यादा टाइम से एक टीम लेके चल रहे हैं। टीम मैनेजमेंट मींस कैप्टन, कोच एंड टीम डायरेक्टर, बट वो चीज़ अब चली नहीं है obviously then. Yeah. Questions will be asked. Sorry Shoaib, I have to take a break right now. Yeah, so when we come back we're going to talk more about this. Don't go away. Stay with us. वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड दी एयरवाइज ऐप। आज 2 मुकाबले हैं। पहला मुकाबला बांग्लादेश का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान। उसके बारे से हम लोग बात कर रहे थे और आज शाम को मैच के बाद भी उसके ऊपर मजीद गुफ्तगू होगी और बहुत सारे पहलू हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से जो हमारे एक्सपर्ट्स उसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहते हैं। सो विल ब्रिंग दैट टू यू लेटर। राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर गेम दैट वी हैव, जो कि अभी पहले सुबह 10 बजे शुरू होने वाली है। वो है बांग्लादेश बामुकाबला ऑस्ट्रेलिया। वसीम, बांग्लादेश का तो वर्ल्ड कप बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग गुजरा है, लेकिन साथ साथ में यूँ लग रहा है कि जो उन्होंने बीच में कोशिशें ज़रूर की हैं कि वो किसी तरह अपने रिकिंडल कर सके अपनी कैंपेन को वर्ल्ड कप के, लेकिन एंड में तो आके बिल्कुल यूँ लगता है कि इट्स जस्ट लाइक फूंक निकल गई, फूंक ही निकल गई बिल्कुल। अब स्पेशली लास्ट गेम के बाद जो इंसिडेंट्स हुआ है उससे भी फूंक निकली है। फिर कैप्टन भी इंजर हो गया उनका, ही इज़ नॉट अवेलेबल फॉर टुडेज गेम, and then of course in between I've also read he's gone back to Dhaka as well. Unless it's an emergency during these big tournaments, you don't want to leave your team, especially when the chips are down. And they need to find batters in Bangladesh, and fast bowling is doing well. Good, that's the positive I saw in Bangladesh. And I've also read today that Donald is going back home after the game. Either वो renew नहीं कर रहे हैं, इसका contract renew नहीं हो रहा. I think he made a lot of difference. And
I know he's the number one all-rounder in the world, Shakib, but they need to find somebody else as well around him. He's not going to be there forever. Yeah, that's He's like about 35, 36, isn't he now? Yes. Yeah. So they really need to find a way. Well, how does Bangladesh play today's game? In what state of mind do they play today's game? They can only play कि भाई वो उनकी जगह है उसमें Champions Trophy के लिए. Right, नहीं वो तो है, stakes are high, but now that Shakib is not there, सारी debacle हुई है पूरी की पूरी. How do you come into that frame of mind कि यार ये जीतना है, Champions Trophy खेलनी है? It's tough. So how do you get into that frame of It's mind? not that easy. वेरी टफ, वेरी टफ. स्पेशली अगर आप देखें वेन्यू देखें, सामने टीम देखें, वो किस मोमेंटम से आ रहे हैं और बांग्लादेश की क्या हालत है, हर चीज़ उनके अगेंस्ट है, फॉर्म. और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बांग्लादेश को इस टाइम पे उनकी बैटिंग है. बैटिंग ऊपर से लेके नीचे तक कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर रही जब तक कोई ऐसा प्लेयर ना हो कि जिससे अगली टीम को पता हो यार ये एक प्लेयर है या दो प्लेयर हैं जो कि गेम हमसे लेके जा सकते हैं. वो एक एवरेज टाइप की इनिंग्स अगर आप खेलते हैं 40-50 रन कर लिए, आप मुश्किल से 230-40 पे पहुंच गए, वो ट्रिकी पिचेस पे, बांग्लादेश टाइप की पिचेस पे तो आप खेल सकते हैं. वो बिल्कुल सही. यहाँ पुणे में अगर आप खेल रहे हैं तो यहाँ तो भाई पता लगे, यहाँ तो एवरेज स्कोर ही 300 है. यहाँ पे तो आपको इन फॉर्म बैट्समैन चाहिए और ऐसे बैट्समैन चाहिए जो आके बिल्कुल अटैक कर दें दूसरी टीम पे, अदरवाइज विल बी स्ट्रगलिंग देयर. Yeah, they would be. For Australia, मोइन आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया किस स्ट्रेटजी के साथ इस मैच में जाएगी? They've already qualified for the semi-final. They're a very strong team. क्या आज होगा कि यार अच्छा उधर ये टेस्ट कर लेते हैं, फलां बंदे को टेस्ट कर लेते हैं, कोई अगले सेमीफाइनल में जाने से पहले? मेरा ख्याल है फखर जिस तरह पिछले मैच में टीम खेली है, नो डाउट कि एक बहुत ही ऐसी पोजीशन से मैक्सवेल ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेल के उनको लेके आए, जितवाया. आई थिंक उनका जो फ्लेयर है, लाइक जिस तरह वो खेलते हैं क्रिकेट, मेरा नहीं ख्याल है वो कभी भी किसी भी टीम, चाहे वो हल्की ऑपोजिशन हो या एक टफ ऑपोजिशन हो, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं. तो यहाँ पे ऑल आउट जाएंगे. मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे कोई ऐसी इस टीम के अंदर ज़रूरत नज़र आ रही है कि वो प्रिपेयर करेंगे फॉर द सेमीफाइनल. बट नेचुरली उनके जहन में सेमीफाइनल तो होगा. तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो कोई स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे. अब जो जिस फुल थ्रॉटल पे क्रिकेट खेलते हैं उसी तरह खेलेंगे यकीनन. और स्पेशली जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है जैम्पा की, ऑल्दो बांग्लादेश के बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. फास्ट बॉलिंग पे तो है ही, फास्ट बॉलिंग बहुत ही अच्छी है ऑस्ट्रेलिया की, लेकिन ये जैम्पा का भी बड़ा रोल होगा यहाँ पे. लेकिन हो सकता है मोइन भाई कि कोई एक आधे अपने बॉलर को उनके पास बाकी भी जो प्लेयर हैं, एक तो स्टीव स्मिथ का भी होगा कि उनको पिछला मैच एबर्ट अच्छा बॉलर है. I think he's available for the selection. Steve Smith's vertigo is gone apparently. That's a good thing. एक चीज़ ये हो सकती है, अगर टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत गया और उन्होंने पहले बैटिंग कर ली तो मुझे एक 200 और होते हुए नज़र आ रहा है. डबल सेंचुरी? हाँ जी. किसकी? ऑस्ट्रेलिया में से किसी बैटर की. अगर उन्होंने टॉस जीत के पहले बैटिंग की जिस वेन्यू पे मैच है, मुझे एक 200 होता हुआ नजर आ रहा है. लेकिन मेरे ख्याल में बांग्लादेश की बॉलिंग इतना बुरा नहीं कर रही, उनकी बैटिंग ने उनको बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया. उनकी फास्ट बॉलिंग, जैसे वसीम भाई ने पहले बात की है, पेसर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं. फिर उनका जो मेहदी हसन मिराज वो अच्छी बॉलिंग करता है. शाकिब नहीं होगा इस मैच में, बट स्टिल बॉलिंग उन्होंने ऐसी नहीं की कि बहुत ज़्यादा कोई उनको हर मैच में कुट लगी हो. उनके फास्ट बॉलर नए बॉल से भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बीच में भी डेथ ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं. तो बैटिंग इज अ कंसर्न. तो 200 रहने दो, मैंने फिर भी 160-70 नजर आ रहा है. आसान नहीं होगा. आसान नहीं होगा. मिसबा कह रहे हैं आसान नहीं होगा. Right, and we're going to take a break with that, and when we come back, we're closer to the action. Stay with us. Welcome back to the Pavilion. We're getting closer to the action. First game up is Australia versus Bangladesh, and then later today we have England versus Pakistan. और इस वक्त हुआ है expert predictions का, brought to you by Express Power. All right, Shoaib, for the first game and the second game, your predictions. First game is Australia. Second game दुआएं पाकिस्तान के साथ हैं, but England. Ooh, Australia and England. Expert prediction दिया आपने. Okay, and Moin, for you, पहली game? Yeah, first Australia and second Pakistan. Second Pakistan, good one. Wasim, for you? Australia, Australia and Pakistan for me. Pakistan. All right, Misbah? Same. Australia, Australia, Pakistan. Okay, and there are your expert predictions. और वक्त हुआ है for player to watch out for, brought to you by Ufone. Right, Misbah, player to watch out for first game and second game. लेफ्टियों का देना ट्रेविस हेड और फखर जमान.
Travis and Fakhar. Okay, for you, Wasim? David Warner Warner, and Rizwan. Rizzi. Okay, and for you, Moin? G Maxwell Maxwell. and Abdullah Shafiq. Oh, वो माइक ना खेले तो मैक्सवेल हाँ मैं भी ये और कहने वाला दूसरा था भी देख ले। कि कोई ऐसे बंदे ढूंढने पड़ेंगे मैं फिर? मिचेल स्टार्क कह रहा हूँ भी ना अकेले Well, फिर I'll go with David Warner जो उसी में Warner, for both of you. Warner, right, for you, वार्नर Warner. And for the second game? फॉर द सेकंड गेम वो है ना मैं किसी तरह नाला इंग्लैंड च भी ना कोई खेले You overthinking it, Shiv. I David Malan. Milan. Okay, मैंने कहा शायद. Okay, all right, and those are your players to watch out for. So सूरत हाल इस तरीके से कि आज के ये 2 मैचेस हैं, फिर उसके बाद कल का दिन है, then we go into the knockout stages. And things Yeah, would we get. might have a day off. We actually do have a day off scheduled finally. So happy. Everybody is happy. All of us are happy that we have. मुझे लगता है ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋਣ I know because Okay. you're used to it so much. ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ नहीं अगर आपने आना होगा तो हम 4 पुतले बिठा देंगे यहाँ It has been quite a daunting schedule that we've had, and quite a daunting task to be in and out every day to do this. But you know what? I could have not chosen better 4 people to do this with than you guys. So thank you so Likewise, much. the whole team. Likewise, yes. Yeah, for the entire team, especially for everybody behind the scenes. Any last words for Bangladesh? I think play for your pride, give your best shot, even though पता है कि we are not going forward in the tournament, but play for your pride, give your best shot, and think about the Champions Trophy. और उसके साथ-साथ sending a strong message to rest of the world, we are still good enough to compete at the higher level. राइट मैं पॉइंट टेबल के हिसाब से देख रहा था वसीम ना एक खबर आई जो ब्रेक हुई थी कल कि आईसीसी ने श्रीलंका के बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है और वो नहीं आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट नहीं खेल सकती डज दैट मीन द चैंपियंस ट्रॉफी से वो बाहर हैं या वो कोई अभी उसको वेट से पहले करेंगे दे आर होस्टिंग अंडर 19 वर्ल्ड कप नेक्स्ट जी ईयर वो भी क्या कर सकेंगे कि नहीं कर It all depends. Apparently, their board is ICC board is having a meeting on the 21st of November. Okay. And that's where they decide कि क्या फाइन करना है या कि bilateral खेल सकते हैं या इनकी membership वापस कैसे होगी. So far we don't know. It's not a good thing for Sri Lankan cricket board. They do love their cricket and they're very passionate about it, the Sri Lankans. Yeah, but I hope they sort this out. एंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि इसलिए आईसीसी ने उसको सस्पेंड किया है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत हो रही थी तो मेरा सवाल ये है फिर मोइन कि पाकिस्तान में भी तो बहुत पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या होती पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है तो कहीं ये हमारे पे तो नहीं आ जाएगी बात कहीं मुस्तकबिल में नहीं अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहा जो हमारे यहाँ भी चलता है इन्फ्लुएंस का पॉलिटिकल कहीं भी कोई चीज़ अगर इस तरह अप्रूव होती है दैन डेफिनेटली जो आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें तो क्लियरली ये मेंशन है कि आपके कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए तो आई थिंक जाहिर सी बात है जब आप एक चीज़ को फॉलो करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा हुआ है क्लॉज क्लियरली उसके बावजूद आई थिंक थोड़ा सा रीथिंक पाकिस्तान को भी करना पड़ेगा दूसरे नेशंस भी थोड़े से मोहतात हो जाएंगे All right, with that, gentlemen, thank you very much. Thank you, Shoaib. Thank you, Moin. Thank you, Misbah. Thank you, Wasim. We're going to take you live to the action. 2 games हैं दोनों मुकाबलों के बाद शाम को आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे पेविलियन लेकर. Stay with us. Keep watching A Sports, 10 Sports, and the AIY Zap app, and our continued coverage of the ICC Men's World Cup.